either two things. Either you increase your income or you live within a budget. Exodus 20 verse 15. Do not steal. We think stealing means is only stealing, robbing. How this is related to the financial commandment? Do not buy now and pay later. We feel and we fall in this trap. You know, when we buy now and pay later, then we have to start praying later also to pay. We can never take EMIs except home loan. There is no option. You're not going to gather 60 lakhs and buy house. Very difficult unless if you're partial. So home loan is okay. Anything apart from that, don't happen. So we were seeing about the 10 financial commandments. और हम 10 आर्थिक आज्ञाओं के बारे में सीख रहे थे. I hope you all have started implementing this ASAP. और जैसे पास्टर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हमने इन सबको अपने जीवन में तुरंत ही लागू करना शुरू कर दिया. So let's go from the first commandment is keep God first. तो हमारी सबसे पहली आज्ञा थी वो ये थी कि परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दें. Second, do not worship material things more than God. और दूसरा था कि संसार की चीजों पे ज्यादा उनकी आराधना मत करो परमेश्वर से ज्यादा. Third is don't make selfish prayers. तीसरा था कि स्वार्थी प्रार्थनाएं मत करो. Okay, it's good to pray for your needs, but sometimes we overdo it, then it becomes selfish. और हमारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना अच्छी बात होती है, पर जब हम उससे ज्यादा कुछ मांगने लगते हैं तो वो खराब हो जाता है. Fourth is be a good steward. चौथा था कि एक अच्छे भंडारी You can बनो. tell me what is the 3 qualities you need to be a good steward? और एक अच्छे भंडारी होने की 3 गुण क्या है? Okay, Purnima, tell me. Spend wisely. Spend wisely, not erratically. Second, Save diligently. save diligently. And third, They give generously. amen. Give generously. 3 जो गुण है एक अच्छे भंडारी होने के वो ये है कि समझदारी से जो है हमें खर्चा करना है, लगन से हमें पैसे बचाने हैं, और तीसरा था हमें उदारता से देना है. The 5th point was teach your children. 5वां जो पॉइंट था वो ये था कि अपने बच्चों को सिखाएं. So that we leave a good legacy to our children. They implement what we do. ताकि हम एक अच्छी विरासत अपने बच्चों के लिए जो है छोड़ के जाए, जो हम करें वही वो चीज वो करें. Remember, it's not what you give your children, it's what you put in your children will make them great. और अपने बच्चों को आप क्या देते हैं वो मायने नहीं रखता है, आप उनके अंदर क्या बोते हैं वो उन्हें मान बनाएगा. The 6th was live on a budget. और छठा था एक बजट पे, एक हिसाब पे जिए. How many of you are writing down your budget every month ASAP from last time? If you are not writing, please start writing. और आप में से कितने लोग जो है अपना हिसाब जो है जब ये पास्टर ने वचन शुरू किया है इससे जो है वो तुरंत लिखने लगे हैं. Okay, let's continue. हम आगे पढ़ेंगे. 7वां पॉइंट. Exodus chapter 20 verse 14. अब निर्गमन का 20वां अध्याय और 14 वचन So I am देखेंगे. relating the financial commandments with the 10 commandments. और जैसे पास्टर ने कहा था कि जो आर्थिक आज्ञाएं हैं उसे 10 आज्ञाओं से जोड़ा है पास्टर ने. तो निर्गमन का 20वां अध्याय 14 वचन कहता है तू व्यभिचार ना करना. You shall not commit adultery. How it's related to finances? और तू व्यभिचार ना करना, इसे हम आर्थिक आज्ञाओं से कैसे जोड़ When we सकते हैं? commit adultery, we are not satisfied with the provision God has given us. तो जब हम व्यभिचार करते हैं तो हम जो परमेश्वर ने जो प्रावधान हमें दिया है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते. We want another wife of someone else. When God has given you one, you have to be happy with one because you chose that one. और जब परमेश्वर ने हमें एक पत्नी दी है, खुद की पत्नी दी है, तो भी हम जो है वो दूसरे की पत्नी की लालसा रखते हैं. Now how does this relate to finance? Live within your means. तो इसे हम आर्थिक क्षेत्र से कैसे जोड़ सकते हैं कि जितनी हमारी जरूरतें हैं उसमें जीना. See, you have 2 options. First, live within your means. तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं. पहले कि हम हमारी जरूरतों में जिए, Or second, increase your income. और दूसरा है कि या तो तुम्हारी कमाई को तुम बढ़ाओ. If I don't increase my income and I increase my expenses, I will be on debt always. और अगर मैं मेरी कमाई नहीं बढ़ाता हूँ और अपने खर्चों को बढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा कर्जे में रहूंगा. A person who doesn't live in his means is a person not satisfied with the provision God has made for him. और जो व्यक्ति अपनी जरूरतों में नहीं जीता है वो कभी भी जो परमेश्वर ने उसे जो प्रावधान दिया है उससे वो संतुष्ट नहीं रहता है. जितनी मिलती है तनका उतना घुमाओ पंखा. Simple. Do not do over exaggerated spending. तो हमें ज्यादा जो है ज्यादा खर्चे जो है बेमतलब के ज्यादा खर्चे नहीं करने हैं. Because you will land into trouble. क्योंकि हम फिर जो है वो समस्या में आ जाएंगे. And if you come into debt,
And debt is a cycle. It's like a cobweb. The more you try to come up, the more it pulls you back. तो अगर जब एक बार आप कर्जे में पड़ जाएंगे तो वो कर्जा जो है एक तरीके के मकड़ी के जाल के जैसा होता है कि जितना आप उससे बाहर आने की कोशिश करते हो आप उतना ही अंदर जाते हो. Second thing why people don't live in the means is they don't count the cost. और दूसरी बात ये होती है कि इंसान अपनी जरूरतों में क्यों नहीं जी पाता है, क्योंकि जो खर्चे होते हैं, जो कीमत है, उसे वो नहीं गिनता. Banks are after you to take loan. Personal loan चाहिए, home loan चाहिए. Every day I get calls. I said मैं तेरे को लोन देगा. Stop calling me. और जैसे बैंक जो है वो हर दिन हमें जो है फोन करते रहते हैं कि होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए. जैसे पासवान को भी हर दिन कॉल आते हैं. Free lifetime free credit card. Then lifetime free on debt. See, its credit card is good, provided you're wise. If you're not wise, please don't buy it. और जैसे तुम्हें जो है वो लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड का भी जो है वो मिलता है, तो क्रेडिट कार्ड होना बुरी बात नहीं होती है, क्रेडिट कार्ड होना अच्छी बात है. पर अगर तुम्हारे पास बुद्धि है कि तुम उसका सही इस्तेमाल करोगे तो फिर वो अच्छी बात है. So do not fall for this trap. Count the cost. तो इस जाल में जो है वो मत फंसो, जो कीमत है पहले उसे गिनो. Now I'm going to use a word. For some people, this word is a bad word. और पासवान अभी एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि कुछ लोगों के लिए ये शब्द जो है एक गाली When जैसा I है. use this word, you will get shivers down your spine. और जब ये शब्द पासवान इस्तेमाल करेंगे तो तुम्हारे अंदर जो है, तुम्हारी शरीर की हड्डी में जो है वो एक I'm going to चुभन. use it in front of my dad only. The word is maths. Maths. और वो शब्द है गणित. You know, in school you told your teachers you will not need maths, but you need it. और स्कूल में जैसे हमने हमारे टीचर को शायद कहा होगा कि हमें गणित की जरूरत नहीं है, पर हमें गणित की So जरूरत today I है. bought a board. I specially made a stand and excuse my handwriting, please. I have a very bad handwriting. और पासवान जो है एक बोर्ड लेकर आया, उन्होंने स्टैंड भी बनाया है और अब वो इसके ऊपर कुछ लिखेंगे तो उनकी लिखावट पे मत जाना. See, two things. I cannot ride. I don't know riding. और दो बातें हैं कि पासवान जो है गाड़ी या बाइक नहीं चला सकते. So I have two riders for me, my wife and Suresh. पासवान के पास दो चालक हैं, एक मोनिका सिस्टर, एक सुरेश. I cannot ride properly. पासवान जो है अच्छे से नहीं चला सकते. So I get people to ride also for me. तो पासवान लोगों को God makes the provision. See, before Zacchaeus could come, that tree was already created. तो परमेश्वर हर चीज का प्रावधान करता है. जैसे जक्कायस के आने से पहले वो झाड़ जो है वहाँ पे बना Now there was a था. person who was struggling in debts. और एक हमारे चर्च से नहीं है. Was tempted. और एक व्यक्ति था जो कर्जों में था So he came to the pastor. और वो अपने पासवान के पास आया He said, I'm struggling in debts. और उसने कहा कि मैं अपने कर्जों से जूझ रहा हूँ, What should I do? तो मुझे क्या करना Pastor चाहिए. asked him, what is your salary? तो वो पासवान ने पूछा कि तुम्हारी पगार He कितनी said है. 50,000. उसने कहा 50,000. 50, excuse my handwriting again. It's back, 50,000. Okay, right? बराबर zero कितना डाले वो पता है. Okay, 50,000. Okay, now first expense. What will be the first expense here? He's a believer. Tithes, good. Otherwise I would have told you what's the first expense. So how much it will be? 4,200? 5,000 tithes. Okay, now he has to pay rent. Now he's taking a posh locality. 1 BHK, 20K. $20,000. Now he sends his child to a good school. 6,000 per month. Please tell. और जैसे वो पासवान ने उस व्यक्ति को पूछा तो उसने कहा कि 50,000 मेरी पगार है, जिसमें से सबसे पहले उसकी खर्चे अगर देखे तो 5,000 उसे दशवांश देना था, 20,000 उसकी घर का भाड़ा था क्योंकि वो एक अच्छी लोकेलिटी में रहता था, और 6,000 उसकी बच्चे की स्कूल की प्रति महीना फीस थी. Now very important expense, Netflix and Wi-Fi, 2,000 rupees. Yeah. और जो चौथा खर्चा था उसका वो था नेटफ्लिक्स और वाईफाई का 2,000 रुपए. So pastor thought, okay, did he say any other expenses? I have my mobile on loan. How much? कौन सा मोबाइल है? 40,000 मोबाइल. How much EMI? 4,000. Let's add it. फिर उसे पूछा गया कि और कोई खर्चा है, तो उसने कहा कि मेरा जो फोन है वो जो है वो EMI पे है, 40,000 का फोन है, उसकी EMI 4,000 जाती है. Now anything else on loan? AC. We need AC in the summers. AC is on loan. 5,000 EMI. फिर पास्टर ने पूछा कि क्या और कोई जो है चीजें जो लोन पे है, तो उसने कहा कि एसी है जिसका 5,000 महीना खर्चा है. Next, anything else is on loan? Bike is on loan. फिर पास्टर ने पूछा कि क्या कोई और चीज है. I'm not the pastor. Someone else. This is another story. Okay.
फिर उसने कहा कि जो मेरी बाइक है वो भी जो है वो लोन पे है Again 5,000. और उसका भी EMI 5,000 जाता है Anything else expenses? और इसके अलावा कोई और खर्चे हैं। He said we order food from Swiggy. फिर उसने कहा कि मैं खाना स्विगी से ऑर्डर How much करता is your हूँ monthly? You get your monthly expenses on Swiggy. 10,000 rupees. और उसने कहा कि तुम्हारे महीने का स्विगी का खर्चा कितना होता है तो उसने कहा 10,000 रुपए। Anything else? Petrol. Mixed with ethanol now. 2,000 rupees. फिर उसने कहा कि कोई और खर्चा है तो उसने कहा कि हाँ पेट्रोल का खर्चा है जो 2,000 रुपए है महीना। Anything else? और कुछ My wife shops from Myntra every day. Then we get Santra after that. 7,000 rupees. फिर उसने कहा कि मेरी पत्नी जो है वो मिंत्रा पे बहुत शॉपिंग करती है तो उसका खर्चा 7,000 है। Have you realized he's crossed the 50 long back? He doesn't know. और अगर हम यहाँ पे उसकी खर्चे को देखेंगे तो उसकी जो पगार थी 50,000 उसको वो कब का पार कर चुका है और उसे पता भी नहीं है। Know what you are doing. तो जानो कि तुम क्या कर रहे This हो। is the trap of the enemy. ये एक दुश्मन की चाल होती है। Don't follow people who have really made it big. They had a story before. That's why they are at that place. और जो लोग बहुत बड़ा कुछ कर चुके हैं अपने जीवन में उनके पीछे ऐसे ही मत चलो क्योंकि उसके पीछे कोई कहानी है कि पहले वो उस कहानी से गुजरे थे तब जाके वो उस मुकाम पे पहुंचे। You know, when we don't live in our means, you know what we really do? I tell you. और जब हम हमारे जरूरतों में नहीं जीते हैं तो हम क्या करते हैं? We throw our fish to God and we say, I'm not happy with the life you gave me. I'll do my own. और फिर हम हमारी मुट्ठी बनाते हैं और परमेश्वर को दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने जीवन से जो है वो खुश नहीं हूँ जो तूने मुझे दिया है, मैं अपने आप अपने लिए कुछ करूंगा। Very important thing. Either two things. Either you increase your income or you live within a budget. तो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, या तो हम हमारी कमाई को जो है वो बढ़ाएं या जो हमारा बजट है जो हमारी जरूरतें हैं हम उसमें जिए। We had a tendency to spend a lot of money on Swiggy. और जैसे पासवान ने कहा पहले कि उनकी एक आदत थी कि पहले जो है Now. अभी जो उनकी एक आदत है कि पासवान और मोनिका सिस्टर जो है वो स्विगी पे बहुत पैसे खर्चे करते हैं। 200 rupees tea, 250 rupees this. 200 रुपए की चाय मंगाते हैं, 250 रुपए का ये कुछ और खरीदा। So one day I decided, now we have to put an end to this. तो एक दिन पासवान ने निर्णय लिया कि अब हमें ये चीज रोकनी What होगी। I did, I kept a person to cook food. तो पासवान ने क्या किया, उन्होंने एक व्यक्ति को रख दिया जो खाना बना सके। I know the money will go there, but I'm saving 12,000 rupees extra. I calculated that. That's what happens. For that small thing, we think I have to give money for the cook. No, you're saving more, and your health also is good. तो पासवान को ये तो पता था कि जिनको उन्होंने खाना बनाने को रखा है कि उनको तो उन्हें पैसे देने रहेंगे, पर जब उन्होंने हिसाब लगाया तो वो काफी पैसे जो है वो बचा रहे थे और अपनी सेहत को भी बचा रहे थे। Sometimes you know what we do? We say I want to do my housework. और कई बार हम ऐसा कहते हैं कि मुझे मेरे घर का काम करना है। Even my wife, she's very particular about cleanliness. बाप रे, I learned cleanliness from her. और जैसे मोनिका सिस्टर भी जो है वो बहुत साफ सफाई में जो है साफ सफाई के मामले में वो बहुत ध्यान रखती है हर चीज का। We three get shouting. I, Zion and Asher together. और इन तीनों को जो है पासवान को, एशर और जायन को डांट पड़ती है उनसे। Hey, what you're doing? Nothing you're doing at home. Come and clean the sofa. So, instead of saving money on giving maid, work hard. Use that money in earning more money. Use that time. और वो काम करने से, पैसे बचाने से कि हम भाई को पैसे नहीं देंगे, तो उसकी जगह जो है तुम और काम करो और पैसे जो है कमाओ। So, if you have a maid, अगर तुम्हारे घर पे भाई you आती है, save time. तुम समय बचाते You हो, save irritation. तुम वो चिड़चिड़ाहट बचाते And हो। you're washing the vessels. अरे कुछ नहीं करना है। Servant. क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं तो हम दूसरे को देखते हैं और हमें चिढ़ मचती कि अरे ये तो आराम से बैठा है, तो वो मत करो, तुम इससे अच्छा भाई So what रखो। we decided, we'll outsource our work and we'll work hard to bring more money. तो इन्होंने ये निर्णय किया कि हम जो है क्या करेंगे, जो भी हमारे काम है वो हम दूसरों को बांट देंगे कि दूसरे करेंगे और हम जो है वो ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि और पैसे कमा सके। All rich people who reach somewhere, they all have a servant at home. और Don't जितने try to save that 2,000-3,000 rupees. Nothing's going to happen. Think of big things. और जितने भी अमीर लोग हैं या बड़े लोग हैं जो किसी मुकाम पे पहुंचे हैं, उनके सबके घर पे जो है वो नौकर चाकर है। Live within your means. Look to your neighbor and say, live within your means. अपने पड़ोसी को देखकर कहो कि अपनी जरूरतों में जियो। Means if you're earning 50,000, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 50,000 कमाते हो what is your in hand? तो तुम्हारे हाथ में क्या आता है? What is your in hand? If you're earning 50,000, what is your in hand? तो अगर तुम 50,000 कमाते हो तो तुम्हारे हाथ में कितनी पगार मिलती है? 45. Because 5,000 is already gone on tax. So 45,000 is your earning.
तो 5,000 आप पहले ही दशवांश भर चुके हो, तो 45,000 आपकी कमाई है। Okay, the next point. और अगला पॉइंट हम देखेंगे Exodus 20 verse 15. निर्गमन का 20वां अध्याय 15 What वचन। does it say? ये वचन क्या कहता है? Exodus 20 verse 15. निर्गमन का 20वां अध्याय 15 वचन कहता है, तू चोरी न Do करना, not steal. तू चोरी न करना। We think stealing means is only stealing, robbing. और हम सोचते हैं चोरी करना सिर्फ चोरी करना ही होता है। How this is related to the financial commandment? और इसे हम आर्थिक आज्ञाओं से कैसे जोड़ सकते हैं? Do not buy now and pay later. तो इसका मतलब ये है कि तुम अभी कोई चीज खरीदो और उसके पैसे तुम बाद में दो। Zero interest. 0 इंटरेस्ट पे। iPhone लेके जाओ. 0 इंटरेस्ट पे जैसे आता है कि तुम आईफोन खरीद लो। Buy earpods, iPhone earpods, zero interest, and we are, अरे zero interest, praise God, God has provided. और हम सोचते हैं कि 0 इंटरेस्ट पे हमें आईफोन का ईयरपॉड मिल रहा है कि हमें इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा। And we feel and we fall in this trap. और हमें ऐसा लगता है कि हमें इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा है, पर हम इस जाल में फंस जाते हैं। You know when we buy now and pay later, जब हम अभी कोई चीज खरीदते हैं और उसके पैसे बाद में चुकाते हैं, then we have to start praying later also to pay later. तो उसके बाद हमें और प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि हम वो पैसे बाद में Because भर the सकें। creditors will be knocking at your door to get the money back. क्योंकि जो पैसे लेने वाले हैं वो आपके दरवाजों पे खटखटाएंगे अपने पैसे लेने के I लिए। tell you an example of a believer. और एक विश्वासी का उदाहरण That's देके why बताऊं। never take EMIs. इसलिए कभी भी Except EMI मत लो। home loan. सिवाय घर There is no option. You're not going to gather 60 lakhs and buy a house. Very difficult. Unless if you're Pastor Joseph. क्योंकि कोई विकल्प हमारे पास नहीं रहता है कि हमारे पास एक साथ 60-70 लाख रुपए आ जाए और हम घर खरीद लिए। सिर्फ पास्टर जोसेफ ऐसा कर सकते थे। So home loan is okay. Anything apart from that, don't go for that. तो घर के ऊपर लोन लेना ठीक है, घर के लिए लोन लेना ठीक है, पर उसके अलावा किसी चीज के लिए लोन लेना नहीं। So there was a family, they did not have TV in the house. तो एक परिवार था जिनके घर पे टीवी नहीं थी। Is TV a need? Is TV a need? क्या टीवी एक जरूरत है? How many say it's a need? Two people say, you say it's a need. Why you say it's a need? And it's kind of, when you're doing something, when you have a lot of workload or something, and as I said, apart from your time as well, you need something kind of entertaining. It's an entertainment. So entertainment cannot be need. I'm watching Netflix, it's a need. It cannot be need. It's an entertainment. I'm drinking 200 rupees tea. What is this? It's foolishness. You are right. This is a need. तो टीवी जो है वो एक तरीके से मनोरंजन का एक आधार है, तो वो एक जरूरत नहीं हो सकती है। Live example in my family. My brother and my sister-in-law, they don't have TV. Look, they don't have TV. और एक जीता जाता उदाहरण है पास्टर के परिवार में, वो है लूक के घर पे टीवी नहीं है। So my son was telling me that now Abner is come, they have to buy. He said they are not buying. तो एक जाहिन जो है पास्टर के बच्चे कह रहे थे कि अब एबनर का जन्म हुआ है तो अब वो टीवी खरीदेंगे, तो उन्होंने So कहा this family did not have TV. तो ये परिवार के घर में टीवी नहीं था। So what they decided, this is what the conversation. Both of them are earning money. The wife is working and the husband is working. तो उन्होंने ये निर्णय लिया, दोनों बात कर रहे थे, पति पत्नी दोनों कमाते थे। The wife said, I will take the EMI तो जो पत्नी है उसने कहा कि मैं EMI पे ले लूंगी and I will pay the EMI. और मैं EMI भरूंगी। Praise God. See God's provision. God is good, na? चलो. God is good, but we are foolish. तो चलो. उसने कहा कि हाँ मैं जो है EMI पे टीवी लूंगी और उसका EMI मैं भरूंगी। Then after some time, the husband required mobile. और फिर कुछ समय के बाद पति को जो है वो मोबाइल की जरूरत थी। Now they don't have money. अब उनके पास पैसे नहीं थे। What they'll do? तो वो क्या करेंगे? Mobile also on EMI. तो उन्होंने वो मोबाइल भी जो है वो EMI पे लिया। See how God is providing EMI. Easy monthly installments. और The full form of that. It's not easy. Hard. और उन्होंने कहा कि कितना अच्छा है, देखो परमेश्वर हमारा प्रावधान कर रहा है कि आसानी से हम जो है हर महीने पैसे चुका So सकते हैं। mobile on EMI, TV on EMI. तो टीवी EMI पे और मोबाइल EMI Sometimes पे। we also full on EMI only. और कई बार हम खुद भी पूरा EMI पे होते हैं। What happened after some time? The wife couldn't work. और फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो पत्नी है वो कमाई नहीं कर पा Now who रही। will pay the EMI? Husband is the head of the house. He will pay the EMI. तो अब जब पत्नी कमा नहीं रही है तो वो EMI कौन भरेगा? पति भरेगा, क्योंकि वो घर का सिर है। You know when you take a loan, you think that in future also you will earn same money what you are earning. We don't know the future. और जब हम कोई कर्जा लेते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि भविष्य में भी हम यही कमाएंगे जो आज हम कमा रहे हैं, पर हम कोई भविष्य नहीं जानते हैं। If you don't have it, praise God. अगर तुम्हारे पास नहीं है तो परमेश्वर I की स्तुति will हो। wait till God provides the TV.
तो मैं इंतजार करूंगा तब तक परमेश्वर जो है मुझे वो टीवी का प्रावधान करेगा। Sing that song. कब से खड़े हैं सज के सवर के टीवी का इंतजार है। जैसे पास्टर ने कहा कि परमेश्वर को कहो कि हम इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर जो है वो प्रावधान करेगा। My mom and dad, we had an old TV. और पास्टर सौदर और लॉयला आंटी के पास जो है वो बहुत पुराना टीवी था। 18 years that TV was there. और More than 18 years. 18 साल से भी ज्यादा वो टीवी था The इनके TV पास। name was Onida. Onida means devil. We didn't know that. और उस टीवी का जो कंपनी का नाम था वो था ओनिडा, और ओनिडा जो है वो शैतान है। My mom is a freak of God TV. मतलब God TV को खा लिया अंदर से। Full freak. और आंटी लॉयला जो है उन्हें जो है वो गॉड टीवी इतना पसंद है कि वो पूरा समय जो है सिर्फ गॉड टीवी देखते Now हैं। our TV was so international. We used to be seeing the TV. और इनकी टीवी जो है वो इतनी अच्छी थी कि ये टीवी देखते थे। Suddenly, oh, क्या हो गया? People, neighbor also got so loud the noise and disturbance. और अचानक से बहुत जोर से उसमें जो है वो आवाज आ जाती थी कभी कभी देखते देखते। And in that society, our house was the smallest. सबसे गरीब लोग हम लोग। गरीब और प्रभु से करीब, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो गरीब और तुम जाते। और इनकी वो पूरी सोसाइटी में जो है सबसे छोटा घर जो है वो इनका था। So my mommy, what she did, she came up with an idea. तो आंटी लॉयला जो है वो एक आइडिया के साथ आए। Some of this is a TV. अगर ये टीवी उदाहरण के लिए So she had to catch the wire. तो उन्हें I'm telling you this. ये सब किया है, इसके लिए आज इधर है. Okay, she used to catch. तुम लोग नहीं करेंगे, नहीं, ये मैं उठाओ. So she used to catch the TV wire और ऐसा देखती थी. Kneel down. Sometimes people are wondering क्या कर रही है. तो अगर आंटी लॉयला को टीवी देखना रहता था तो वो क्या करते थे, वो पीछे से वायर जो है उसे पकड़ के रखते थे और आगे जाके ऐसे मुड़ के टीवी देखते Has to थे। kneel down. And she used to kneel down and then pray भी होता था, सब पे TV देखते. Praise God. Double ending song. और आंटी लॉयला घुटने पे आके जो है वो टीवी देखते थे। And I used to think, क्या यार, डैडी ने जॉब छोड़ दी, क्या हालत हो गया हमारा मिनिस्ट्री के चक्कर में. और पास्टर सोचते थे कि अरे ये क्या चल रहा है, जैसे पास्टर सौदर ने पूरी समय की सेविकाई ले ली थी और जॉब छोड़ गया था, तो ये क्या चल रहा है। Suddenly one church member ना, they came to know this. और Listen to this. अचानक से कलीसिया के जो लोग थे उन्हें पता चला, They said we will give you TV. तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें टीवी We'll pay देंगे, the down payment, हम डाउन पेमेंट भरेंगे but you pay the EMI. और तुम जो उसका ईएमआई है वो भरना। डैडी ने हाथ जोड़ा, नहीं भाई नहीं चाहिए, थैंक यू, we'll pray. EMI में घुसना ही नहीं है. तो पास्टर सौदर ने कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हम उसके लिए प्रार्थना कर लेंगे पर हमें ईएमआई में नहीं जाना है। तो at least 8 months to 1 year we did this, looking at the TV this way, मैच भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, ऐसा करके देखो क्या. और कम से कम 8 महीने से 1 साल तक जो है इन्होंने ऐसे ही किया कि ये ऐसे ही टीवी देखते थे वायर पकड़ के। One day in the night at 11 o'clock, और एक दिन रात को 11 बजे same family, वही परिवार they knocked at my door, उन्होंने इनके दरवाजे and I पे used to sleep खटखटाया outside on the hall. और पास्टर उस समय हॉल में सोते थे। So I thought, who's come? Here I stand at the door and knock. If anybody opens the door, I will dine with him. तो रात को 11 बजे पास्टर को लगा कि अरे कौन आया है, So I opened the door. तो पास्टर ने दरवाजा खोला BPL TV. तो वो बीपीएल टीवी लेकर My आया। dad asked me, EMI पे? EMI पे? नहीं, fully paid, free TV we got. तो पास्टर सौदर ने सबसे पहले पूछा कि ये ईएमआई पे लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने सब पूरा दाम चुका के लिया। When you wait, you show God that I'm waiting on you. तो जब हम इंतजार करते हैं तो हम परमेश्वर को ये दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर इंतजार कर But रहे when हैं। you don't wait, straight you land up top 10 mobile to buy mobile. पर जब हम इंतजार नहीं करते हैं तो हम सीधा जो है वो ऐसी दुकानों पे जाते हैं जहाँ पे हम कर्जे पे Then you become top 10 in debts in the church. Top 10 list. और फिर आप टॉप 10 लोगों के नामों में जो है आपका भी नाम जो है जुड़ जाता है। God has wired us to have hope. तो परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया है कि हमारे अंदर उम्मीद हो। God has wired us to have gratification. Delayed gratification is the best gratification. और परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया है कि जो हमारे अंदर उभारता है और जितनी देरी से वो चीज हमें मिलती है उतना ज्यादा हमारे अंदर उस चीज का I'll tell you उभार the होता story. है। You know the story. Some of you know, some of you don't know the story of my dad's bike. और हम में से कितने लोगों को पास्टर सौदर की कहानी पता है, बाइक की कितने को शायद नहीं पता Dad had है। a Hero Honda CD100 in 1986. He bought this. और 1986 में पास्टर सौदर ने हीरो होंडा CD 100 ली थी In Junagadh. And in Junagadh, and from that only bike we used to use. और वही बाइक जो है ये इस्तेमाल कर रहे थे। 99 we came. 1999 आ गया, 13 years for the bike. 13 साल हो गए इस बाइक The को। bike was so international, you could walk and go fast and go into the bike.
और वो बाइक इतनी अच्छी चलती थी कि जब वो बाइक चला रहा कोई उसके आजू बाजू से लोग जो है चल के जा सकते थे इतनी One day तेज। my daddy was in Cheknaka signal. और एक दिन पास्टर सौदा चेकना का सिग्नल पे खड़े थे, The traffic policeman. तो जो ट्रैफिक पुलिस वाला था He said, क्या बाइक है लोहे में बेच दो उसको. Inside. That felt very bad. I'm a servant of God. क्या हो रहा है? He doesn't tell me because उसको मालूम है मैं और भी चढ़ जाऊंगा. कि लो छोड़ा. तो वो खड़े थे जब सिग्नल पे, तो जो ट्रैफिक हवलदार था उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारी क्या बाइक है, से लोहे के भाव में जो है वो बेच दो। तो पास्टर सौदर को जो है वो बुरा लगा उस समय कि मैं तो परमेश्वर का दास हूँ और मेरे साथ ये क्यों हो रहा One है। day the bike became into half. और एक दिन वो जो बाइक है वो दो हिस्सों में हो गई। And then my daddy had to weld it, take it to the shop. इतना हल्का, we did not have bike money also. That's why I'm telling you, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ गया सब कुछ ऊपर से हम लोग कैच पकड़ रहे हैं अभी. और फिर पास्टर सौदर उसे जो है वो बाइक मैकेनिक के पास लेके गए उसे वेल्ड करने से जुड़ाने के लिए। When my daddy used to work in Dahisar, और जब पास्टर सौदर दाइशा Church में काम office, करते थे church चर्च ऑफिस में, side of that there was a loan agency to give loan for bike. See, side of that. You think God provided? God no, devil आ गया. और उसके बिल्कुल बगल में जो है एक दूसरा ऑफिस था जो लोन एजेंसी था, जो बाइक जो है तुम्हें कर्जे पे लोन पे जो है वो देता है। Pay 2000 2000 रुपए भरो and take on EMI. और ईएमआई पे बाइक ले लो। मजा की life. No मजा, सजा after that. और हमें लगता है कि ये अच्छी आराम की जिंदगी होगी, पर नहीं। He literally went to that place. तो पास्टर सौदर उस जगह पे गए, He signed all the documents. इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जो है साइन Everything किए, was done. सब कुछ कर लिया था। Suddenly the Lord spoke to him. और अचानक से परमेश्वर ने उनसे I बात की। made you the lender, not the borrower. परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, ना कि He लेने took वाला। that paper, put it in the dustbin. He went. He must be very disappointed. क्या lender, not the borrower. हालत खराब है इधर. और पास्टर सौदर ने वो पेपर्स लिए, उसे फाड़ा और कचरे के डब्बे में फेंका और चले गए। Suddenly, after many months of this, और इस घटना से बहुत महीने गुजर गए। there was a pastor who called us up at 4 o'clock in the morning. मतलब he called us up. और एक पास्टर ने जो है इन्हें सुबह 4 बजे फोन The किया। pastor is nobody other than Pastor Joseph. वही ऐसा कर सकता है. और वो पास्टर और कोई नहीं थे, पास्टर जोसेफ And he थे। said God woke him up 4 o'clock in the morning. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने उन्हें सुबह 4 बजे उठाया। He said give something to sort out. And he doesn't know us that much. We were not that close to him that time. और 2004. 2004 की बात है, और उस समय जो है इनका परिवार जो है इतना पास्टर जोसेफ के नजदीक भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर मुझे कह रहा है कि तू कुछ जो है वो सॉर्टर को दे। So he called him to his house in Shivaji Park. तो पास्टर जोसेफ ने जो है वो पास्टर सौदर को अपने घर बुलाया He शिवाजी gave him a पार्क में। check. एक चेक दिया So dad came home. और फिर पास्टर सौदर घर आ गए। Dad opened the check. उन्होंने वो चेक खोला, 50,000 rupees. उस पे 50,000 लिखे थे 49,500 bought the bike, 500 traveling charges. और उन 50,500 में जो है इन्होंने बाइक खरीदी और जो 500 रुपए था वो इनका भाड़ा लगा बाइक That time I खरीदने में। learned if you want something apart from house, I will not take loan. चले दे. तो उस दिन पास्टर ने एक बात सीखी कि घर को छोड़ के अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत है तो मैं कर्जा नहीं लूंगा। Sometimes people take house to furnish the house, they take loan. Top up on the extra home loan. Wow. और कितनी बार लोग घर खरीदते हैं और फिर उसके ऊपर जो लोन पे खरीदते हैं घर और फिर उसके ऊपर और लोन लेते हैं कि अपने घर को जो है वो सजा सके। And then to show people how beautiful the house is, they call people and take more loan to feed those people. और फिर लोगों को बुलाते हैं ये दिखाने के लिए कि उनका घर जो है वो कितना अच्छा है, उसके लिए वो और कर्जा लेते हैं कि लोगों को खाना If खिलाते I हैं। don't have the money, I will not decorate my house. It's simple. और अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अपने घर को नहीं सजाऊंगा। But I will not take loan because God is on the throne. और मैं कर्जा इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि मेरा परमेश्वर सिंहासन पर है। Do not, when you don't have a mobile, don't go and buy a mobile. Wait for, repair that old mobile. Show God that you're a faithful steward in little things. तो जब आपके पास मोबाइल नहीं है या खराब हो गया है तो तुरंत घाई मत करो कि जाके आप नया मोबाइल लेकर आ जाए, उसे रिपेयर करो, परमेश्वर को दिखाओ कि आप उसके विश्वास योग्य दास हो। First, only when your salary comes, some of our salaries 80% it is already committed before it comes. और What a हम commitment, faithfulness. में से कितने लोग ऐसे होते हैं कि हमारी पगार आने से पहले ही जो उसका 80% जो है वो पहले से तय हो चुका है कि वो किधर जाना है। First the salary comes, पहले पगार आती है, 5th it is gone. 1 तारीख को पगार आती है, 5 तारीख को खत्म हो And जाती then है। for 25 days, praise the Lord, God give us our daily bread. और फिर हम 25 दिन जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तो हमें हमारी दिन भर की रोटी दे। I saw a YouTube video, और पास्टर ने एक YouTube वीडियो देखा था, a person earning 30,000 salary. एक व्यक्ति 30,000 रुपए कमा रहा He था bought his own house. और उसने अपना खुद का घर खरीदा। It is possible if you are consistently saving
और and investing. Yeah. वो मुमकिन है जब आप नियमित रूप से जो है वो बचत करते हो और कहीं पे निवेश भी करते हो। So don't buy now and pay later. तो अभी कोई चीज मत खरीदो और उसके पैसे बाद में मत There was a, I'll end this point with a small illustration. There was a pastor who had a big car और एक पास्टर था जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी and थी he had a lot of debts. और उसके ऊपर बहुत कर्जे थे He told the Lord, get me out of debts. और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो उन्हें इस कर्जे से You know what the निकाले। Lord told him? Sell your car. तो परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तू तेरी गाड़ी बेच, Buy a small car. तू एक छोटी गाड़ी He खरीद। sold his car, उसने अपनी गाड़ी बेची, bought a small car. उसने छोटी गाड़ी खरीदी। Joy filled his life that he's not on debts now. तो उसके जीवन में जो है वो आनंद भर गया। क्यों? क्योंकि वो कर्जे में नहीं था And God started blessing that pastor. और परमेश्वर फिर उस पास्टर को आशीष करने You लगा। need to show God what you're made up of. Do you have hope that He'll provide, or do you hope on yourself that He will take a loan? तो आपको परमेश्वर को ये दिखाना है कि आप किस चीज से बने हुए हो, कि आपके अंदर वो उम्मीद है कि परमेश्वर जो है वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपका प्रावधान करेगा, या आप अपने खुद के ऊपर उम्मीद लगा के बैठते हो कि आप अपनी ताकत से चीजें कर पाओगे। Because of loan, people go into depression also. और कर्जे की वजह से लोग जो है वो तनाव में भी जाते हैं 90% of the divorces are because of finances. और 90% जो तलाक होते हैं वो आर्थिक क्षेत्र If the man doesn't know the job, it's pressure on the woman. क्योंकि अगर जब एक पति काम नहीं करता है तो उसका दबाव पत्नी पे आता है, Then the wife has to earn the living. फिर घर चलाने के लिए पत्नी को कमाना And पड़ता then है it becomes bad. और फिर ये चीजें खराब हो जाती है। Point 9. 9वां पॉइंट How देखेंगे, it relates to finances. हम इसे कैसे आर्थिक आज्ञाओं से जोड़ सकते हैं। Let's go to Exodus chapter 20 verse 16. हम निर्गमन का 20वां अध्याय और 16 वचन देखेंगे। Exodus 20 verse 16. निर्गमन का 20 अध्याय 16 वचन कहता है, तू किसी के विरोध झूठी साक्षी न देना। How this is related to finances? और हम इसे जो है वो आर्थिक क्षेत्र में कैसे जोड़ सकते Are हैं। we a good witness for Jesus? Do we pay our maintenance on time? Do we pay our rents on time? Or our list is first in the defaulters for property tax and maintenance? और क्या हम यीशु मसीह के लिए या परमेश्वर के लिए एक अच्छे साक्षी बनते हैं कि हम हमारा मेंटेनेंस जो है वो समय पे भरते हैं, हम हमारा भाड़ा जो है समय पे भरते हैं, या हम वो डिफॉल्टर के लिस्ट में आते हैं जहाँ पे हमने हमारा प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, हमारा मेंटेनेंस नहीं भरा है। Imagine you're telling someone about Jesus, और सोचो अगर आप किसी को यीशु के बारे में बता रहे हो and below the building your name appears in the areas of maintenance. 3 months and you're telling others about Jesus. What a shame. और आप यीशु के बारे में अगर किसी को बताते हो और आपके बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड में जहाँ पे लोगों का नाम लिखा गया है कि 3 महीने से उन्होंने मेंटेनेंस नहीं भरा है, उसमें आपका नाम शामिल है। If you're a believer अगर आप विश्वासी हो, and you're taking a loan from an unbeliever, क्या अगर आप एक अविश्वासी से कर्जा लेते हो, good testimony. Very bad testimony. तो ये एक अच्छी गवाही नहीं है, ये बहुत बुरी गवाही I've है। told people in my church, अरे भाई तू बाहर से मत मांग, मेरे से मांग, मैं देता हूँ थोड़ा सा दो सबसे। और पास्टर ने अपने लोगों को कलीसिया में भी बोल रखा है कि तुम बाहर से कभी कर्जा मत लेना, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझसे मांगो। You are talking about Jesus and doing all this. तुम यीशु के बारे में बात करते हो और फिर ये चीजें करते What हो। is a good example about Jesus? Not only giving bad words, it's also this. This is integrity. और अच्छा उदाहरण यीशु के लिए क्या है? सिर्फ गाली नहीं देना वो अच्छा एक उदाहरण नहीं होता है, किसी से कर्जा नहीं लेना ये भी बहुत अच्छा उदाहरण होता है। Sometimes we put on a false picture to the world. और कई बार हम एक अपनी झूठी तस्वीर जो है वो दुनिया को दिखाते हैं। What we do, we don't have money. हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, We live on rent, हम भाड़े पे रहते हैं, but we have a nice car. पर हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी होती है। One day in my society, एक दिन पासवान की सोसाइटी में there was a Mercedes. एक मर्सिडीज खड़ी So थी we have Porsche, very big cars are there. और पासवान की लोकेलिटी में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। So one fellow had a Mercedes. तो एक इंसान के पास मर्सिडीज So I थी, thought he may be having 2 BHK, 3 BHK there. तो पासवान को लगा कि शायद उसका 2 BHK या 3 BHK का घर होगा, That person was living on rent. और वो व्यक्ति जो है वो भाड़े पे रह रहा था। Don't, you know, when we are doing this now, we are lying. You know how we are lying? We are telling lies that I'm rich when you're poor. तो जब हम ये चीजें करते हैं ना तो हम झूठ बोलते हैं, और हम कैसे झूठ बोलते हैं कि हम ये दिखाते हैं ये सारी चीजें करके कि मैं अमीर हूँ तब कि हम गरीब होते हैं। Car is not status quo. Bank balance is status quo. Remember that. और गाड़ी जो है वो आपका जो है वो एक क्लास या औहदा नहीं दिखाता है, आपका जो बैंक का खाता है वो आपका औहदा दिखाता है। People think that sitting on the car, their collar becomes up. Petrol भरना पड़ेगा, maintenance भरना पड़ेगा, all headaches. और लोगों को लगता है कि जब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं तो वो बहुत अच्छे दिखते हैं, पर तुम्हें ये नहीं पता है कि उसमें पेट्रोल भी जाता है, उसका आगे खर्चा भी आता है उसको I've seen संभालने का। people's car getting confiscated because they couldn't pay the EMI. What a shame.
जैसे पास्टर ने कहा कि उन्होंने लोगों की गाड़ियां जब्त होती हुई देखी है, क्यों? क्योंकि वो समय से EMI नहीं भर सके। People's houses getting confiscated because they couldn't pay the EMI. लोगों का घर भी जो है वो जब्त होते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने समय से EMI नहीं भरी। So be a good witness for Jesus. तो एक अच्छे गवाह, एक अच्छे साक्षी बनो। Don't यीशु के even लिए। once your name come in the defaulter list where the name of Jesus is starred or marred. और एक बार भी आपका नाम जो है उस डिफॉल्टर लिस्ट में, जहाँ पे लोगों ने अपने पैसे नहीं भरे या मेंटेनेंस नहीं भरा, उसमें नहीं आना Because चाहिए। we are ambassadors of Christ. Whatever we do, the bad name or the good name goes to Him. क्योंकि हम यीशु मसीह के जो है वो राजदूत है। हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा नाम करें या बुरा नाम करें, वो उसका होता The है। last commandment. और हम एक आखिरी आज्ञा देखेंगे, Exodus chapter 20 verse 17. निर्गमन का 20 अध्याय और 17 वचन। So Exodus chapter 20 verse 17. निर्गमन का 20 अध्याय 17 वचन कहता है, तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। You shall be content with what you have. तो तुम्हारे पर जो कुछ भी है उसमें तुम्हें संतुष्ट रहना है। If I have no bike, I'm content. If I have bike, I should be content. अगर मेरे पास बाइक नहीं है तो भी मैं संतुष्ट रहूंगी, अगर मेरे पास बाइक है तो भी मैं Now, संतुष्ट very रहूंगी। important. I want to tell you something. People get mixed up with content and comfort. Two different things. I can be content, but I will not be in my comfort zone. Or I can be content and I can be in my comfort. नहीं नहीं, कुछ शुद्ध नहीं। और लोग जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं या गलत समझ लेते हैं संतुष्ट होने में और अपने आराम के स्थान में होने में। मैं संतुष्ट हो सकती हूँ, पर मैं जो है वो आराम के स्थान में नहीं हो सकती। या तो ऐसा हो सकता है कि मैं संतुष्ट भी हूँ और मैं अपने आराम के स्थान में भी You हूँ। have to be content and you have to come out of your comfort zone. Then only you can upgrade your living. तो आपको जो है वो संतुष्ट होना है, और जो आपका आराम का स्थान है वहां से आपको उठना है, आपको मेहनत करनी है, तभी आप ऊंचे Let me उठाए just show you a very nice verse. Colossians chapter 3 verse 5. Colossians chapter 3 verse 5. हम कुलुस्सियों का 3रा अध्याय और 5वां वचन देखेंगे। वचन कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात वे विचार, अशुद्धता, दुष्काम, बुरी लालसा और लोभ, और जो मूर्ति पूजा के बराबर है। It is saying fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness. When we are not content, we are covetous, which is idolatry. और यहाँ पे जैसे इतने बुरे काम बताए हैं, वे विचार, अशुद्धता, दुष्काम पर बुराई, पर इसमें लिखा है कि लालच होना। जब हमारे अंदर लालच होता है तो वो एक तरीके से मूर्ति पूजा होता My है। neighbor bought a house, I'll buy a house. My neighbor bought a car, I'll buy a car. My neighbor got married twice, I'll get married twice. मेरे पड़ोसी ने घर खरीदा तो मैं भी घर खरीदूंगा, मेरे पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी मैं भी गाड़ी खरीदूंगा, मेरे पड़ोसी ने 2 बार शादी की तो मैं भी 2 बार शादी Your neighbor करूंगा। becomes God. तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा भगवान बन जाता है। Because you don't buy the car when God tells you, you buy the car with the neighbor steering. क्योंकि जब परमेश्वर आपको कहता है कि गाड़ी खरीद, तब आप गाड़ी नहीं खरीदते हो, क्योंकि आपका पड़ोसी जब आपको बोलता है तब आप खरीदते हो। Everybody of my friends have car. I also have car. I need car. मेरे सारे दोस्तों के पास गाड़ियां हैं तो मुझे भी गाड़ी चाहिए। Do we believe that? Everybody has iPhone. We also have to be in the group. Peer pressure. और हर किसी के पास आईफोन है तो हमें लगता है कि हमें भी उस झुंड का हिस्सा बनना है, तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो हम भी सोचते हैं हम आईफोन Some लेंगे। people say, no, I don't want an iPhone, but someone gave me a gift. I'll give you an answer for this. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे आईफोन नहीं चाहिए था, पर मुझे किसी ने भेंट दी। On my birthdays, पासन के जन्मदिन पे people ask me, लोग इन्हें पूछते हैं, they better ask me what I need. बेहतर है कि इन्हें पूछे कि इन्हें क्या चाहिए। So they ask me, what do you want? तो लोग इन्हें पूछते हैं कि तुम्हें I क्या say, चाहिए। त्रास मत ले, पैसा ट्रांसफर कर दे. तो पासन कहते हैं कि तू ज्यादा मत सोच, मुझे सिर्फ पैसे ट्रांसफर कर दे, That I'll decide what to do. फिर मैं सोचूंगा कि मुझे क्या लेना है। If someone is giving me iPhone, I say, वो पैसा ना मेरे को दे दे, मैं उधर किधर लगा दूंगा. अगर कोई ने बोलता है कि मैं तुम्हें आईफोन देता हूँ, तो पासन कहते हैं कि नहीं उसका पैसा तो मुझे दे दे, मैं उसे निवेश कर That's a wise steward. ये एक बुद्धिमान Why should I स्टूडेंट show बनता है। people that I have money by iPhone? Why? I buy gold with that. और मैं लोगों को क्यों दिखाऊं कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं उससे आईफोन खरीदूं, उसकी जगह मैं सोना खरीदूंगा। Even phones, they depreciate like car. और फोन भी जो है उसकी भी कीमत जो है गाड़ी की तरह घटती है, But gold will never depreciate. It might come down, it will go up very soon. पर सोने का जो दाम है वो कभी भी घटता नहीं है। हाँ उसकी कीमत कम होती है पर उसकी कीमत बढ़ती भी है। So be satisfied with what you have. तो संतुष्ट रहो जो भी चीज तुम्हारे पास है। Don't covet other people's things. अरे इसके पास है, so I'll also have. और दूसरे लोगों की चीजों की जो है वो लालच मत रखो कि इसके पास है तो मेरे पास भी होनी I चाहिए। also want car. I also want this way house. Not needed. मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी ऐसा घर चाहिए। Don't be covetous. तो लालची मत बनो, Because Bible says covetousness is like idolatry. क्योंकि पवित्र शास्त्र बताती है कि लालच होना एक तरीके से मूर्ति पूजा करना है। One thing I realized about money,
और एक चीज पास्टर ने जो एहसास किया पैसों के बारे में, I didn't realize this before. और इन्हें ये पहली बात नहीं पता थी, Because once you reach a level, now then you realize. क्योंकि जब आप एक स्तर पे पहुंच जाते हो तब आपको एहसास होता है। If a person is earning 4 lakhs per month, example, I'm not earning 4 lakhs, I'm telling you. और उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति 4 लाख रुपए महीना कमा And रहा a है person is earning 7 lakhs per month. और दूसरा व्यक्ति जो है 7 लाख Or रुपए a महीने person is कमाता है earning 10 lakhs per month. या 10 लाख महीना कमाता ज्यादा है, difference नहीं है. They are also enjoying the life. That other person also is enjoying their life. तो No उन difference. में इतना बड़ा कुछ नहीं है difference. उन दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है, क्योंकि वो इंसान भी अपना जीवन का आनंद उठा रहा है, ये इंसान भी अपना जीवन का आनंद उठा रहा Now, है। this will not be applicable if you are earning 50,000 and 1 lakh. No, they're not enjoying their life. तो ये That's the game. चीज उन पे लागू नहीं होती है जो 50,000 महीना कमाते हैं या लाख रुपए महीना कमाते हैं। Once you earn certain figure, then it doesn't matter who's earning what. I'm happy. तो जब आप एक स्तर पे पहुंच जाते हो या एक अच्छी रकम कमाने लगते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप खुश रहते हो, दूसरा क्या कर रहा है। Because always remember, what you are doing to get that wealth is important. If I'm giving 12 hours, my full time is gone. I cannot give my time to my family. Zero it is. क्योंकि मायने रखता है कि वो पैसे कमाने के लिए जो है आप क्या जो है वो कर रहे हो। अगर आप 12-12 घंटा जो है अपने कमाई में दे रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो, तो ये सारी चीजें शून्य हो जाती हैं। Today I want to tell you that if you have any debts in your life तो आज पास्टर हमें कहना चाहेंगे कि अगर हमारे जीवन में कोई भी कर्जा है and you're not able to afford, और आप उसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हो, return that product, pay off the loan. तो वो जो प्रोडक्ट है या जो चीज आपने ली है वो वापस लौटा दो और वो कर्जा चुका Some दो। people say only 3 months left in the EMI. Only 5 months, not only 3 months, only 90 days of hell. और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं या 5 महीने बचे हैं। वो 3 महीने नहीं है, वो 90 दिन है। You don't never know. And those people who have a habit of EMI, one EMI gets over, next EMI, next promotion. जिन लोगों को ईएमआई की आदत होती है ना, उनकी एक ईएमआई खत्म होती है, वो तुरंत दूसरी ईएमआई पे चीजें ले Because लेते हैं। every time you need something or other, sometimes the fridge will get spoiled, sometimes the microwave, keep on taking EMIs. क्योंकि हर बार हमें कोई ना कोई चीज की जो है वो जरूरत रहती है। कभी फ्रिज खराब हो जाए, कभी माइक्रोवेव चाहिए, तो हर बार क्या हम ईएमआई लेंगे। I'll end with this. In our house, we have all good things. और पासवान के घर पे पासवान के घर में हर एक चीज जो है वो अच्छी है, But the microwave is older. और जो माइक्रोवेव है अब वो पुराना हो It's गया है, become 12 years. उससे 12 साल हो So when you गए। put the microwave on, तो जब ये माइक्रोवेव ऑन करते it हैं gives you a sound for 15 seconds. तो 15 सेकंड के लिए उसमें जो है ये आवाज आती है। But I'm okay with it. चल रहा है, चला नहीं है. Why do? We'll see after it. और पासवान का कहना है कि ठीक है ना, वो चल तो रहा है ना अभी तक, तो चलने दे उसे, फिर हम देखेंगे। And I can buy it on cash. 12,000 is not very big amount. और 12,000 की कीमत में पासवान जो है उसे फुल कैश में जो है वो खरीद सकते हैं। But I want to make full वसूली. पासवान उसका पूरा वसूलना चाहते हैं। Sometimes you have to take some habits from here and there and do it. और कई बार हमें यहाँ वहाँ से कुछ आदतें जो है वो उठानी चाहिए और करनी चाहिए। Let's stand in God's presence. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े Let's होते think हैं what we learned today और हम सोचेंगे कि आज हमने क्या सीखा about our finances. हमारे आर्थिक क्षेत्र के बारे में। First, we learned the 7th point was living within your means. और पहले हमने जो 7वां पॉइंट सीखा वो ये था कि हमारी जरूरतों में जीना। Don't buy now and pay later. अभी चीजें मत खरीदो और बाद में उसके पैसे मत भरो। Be a good witness एक अच्छे साक्षी बनो। and be content with whatever you have. Don't mistake me. I'm not saying be in comfort, be in your comfort zone. Be content, I'm saying. और संतुष्ट रहो कि जो भी चीज आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो। आराम में नहीं कि आप जैसे हो वैसे आप जो है वो खुश रहोगे, पर संतुष्ट रहो। Let's close our eyes. हमारी आंखें बंद If करेंगे। you have not followed this, we'll say, Lord, I'm not going to take any EMI. I'm going to follow you. I'm going to follow your principles. No matter what it takes me. और अगर आपने ये सारी चीजों को जो है आगे फॉलो नहीं किया है तो आप परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मैं कोई भी चीज आगे से जो है वो ईएमआई पे नहीं लूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे सिद्धांतों को मानूंगा। Because I want to be your good steward. क्योंकि मैं तेरा एक अच्छा भंडारी बनना चाहता हूँ। That's what you want us. यही आप चाहते हो। Father, we thank you for this time. पिता इस समय के लिए धन्यवाद देते Thank हैं, you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, Thank you that I have spoken your word and it's gone on good ground. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के पास ने आपका वचन कहा है और वो एक अच्छी भूमि पे गिरा Let है। us not only be hearers but doers of your word. और हम आपके वचन सिर्फ सुनने वाले ना बने पर उसे करने वाले बने। Whatever we do, let the name of Jesus be glorified. और जो कुछ भी चीजें हम करें उसमें यीशु के नाम को महिमा In मिले। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen.